ایک بندہ آتا ہے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت، آ کر کے میرے نبی سے سوال کرتا ہے اب یضحک ربنا، محبوب جی اتنا بتانا کیا ہمارا رب دیکھ کے ہنستا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں رب دیکھ کے ہنستا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے اگر رب ہنستا ہے فلا نعدم من خیر یضحک ربنا، پھر تو بلائیاں ہی بلائیاں کبھی مشکل نہیں آ سکتی ہے۔ اگر رب دیکھ کے ہنستا ہے پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی، اللہ خیر ہی کرے گا۔ اور بھی دلیل اس کی دے دو کہ رب دیکھ کے ہنستا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نوٹ کیجئے، صحیح بخاری میں بھی مسلم میں بھی، یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو بندوں کو دیکھ کر کے ہنسے گا، یقتل احدہما الآخر، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، یہ مسلمان شہید ہو گیا، جس نے قتل کیا تھا ثم یتوب، پھر یہ بھی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، ویقاتل، پھر یہ بھی میدان جنگ میں چلا جاتا ہے، ویستشہد، وہاں جا کر کے یہ بھی شہید ہو جاتا ہے، قاتل بھی مقتول بھی کلاہما یدخلان الجنہ، دونوں جنت میں جائیں گے، میرا رب ان کو دیکھ کر کے ہنسے گا، اللہ نے ہنس دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، کامیابیاں ہو جائیں گی، مایوس نہ ہوا کر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ بیٹھے ہوئے قافلے آ رہے ہیں غزوہ تبوک کے بعد، میرے نبی کے پاس ملاقات کے لیے وفد آ رہے ہیں، ابو وجرہ کہتا ہے کہ قافلہ ایسا آیا جس میں 11 آدمی موجود تھے، میرے نبی کے پاس آئے، آ کر کے بیٹھے، اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اسلام قبول ہو گیا، پھر میرے نبی نے ان کے حالات معلوم کیے، بتاؤ تمہارے علاقے کا کیا حال ہے؟ جیسے ہم جاتے ہیں نا سلفی صاحب بجلی رہتی ہے، ہاں جی بجلی رہتی ہے، بس 2 گھنٹے جاتی ہے، ہم پوچھتے ہیں جیسے آپ آتے ہیں، جیسے آج ہمارے گلستان جوہر میں بجلی جاتی نہیں تھی، آج ماشاءاللہ مغرب سے پہلے سے گئی، عشاء تک نہیں بجلی آئی تھی۔ تو یہ ہر بندہ کہتا ہے یار یہ مسئلہ بن گیا ہے، اپنے اپنے علاقے کا حال بتلاتا ہے، بھئی اتنی بجلی کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ یار وہ موبائل چارج کرنا تھا، کیا کریں؟ ہر بندہ اپنا رونا روتا ہے، ہر بندہ اپنے علاقے کا ذکر کرتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا نا، وہ کہنے لگے کائنات کے امام حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، سڑکیں بند ہو گئی ہیں، وانقطعت السبل، راستے بند ہو گئے، حتیٰ کہ بچے ہمارے تو ننگے گھوم رہے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، مال و متاع ختم ہو رہا ہے، تو آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے ان کی جب کیفیت یہ دیکھی نا، تو میرے نبی نے فرمایا یہ ہے وہ عازلین مشفقین قانتین، جب بندے اتنی تنگی میں آ کر کے مایوس نہیں ہوتے، کہتے ہیں اب دعا کر دو، میرا رب دیکھ کر کے ہنس دیتا ہے۔ قریب رابی بیٹھا تھا، کہتا ہے اللہ کے رسول کیا واقعی جو آپ نے فرمایا ہے رب دیکھ کر کے ہنستا ہے؟ فرمایا ہاں رب دیکھ کے ہنستا ہے۔ اس نے کہا اگر رب ہنستا ہے فلا نعدم من خیرن، پھر خیر ہی خیر ہے، بلائی بلائی ہے۔ اللہ کے رسول ذرا پھر آپ دعا کر دیجئے۔ میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، ذرا غور کرنا، میرے نبی نے فرمایا اللہم غیثا مغیثا، اللہ جی بارش نازل فرما، لا ہدم ولا غرق، اللہ جی بربادیاں نہ ہو، غرق بھی نہ ہو، ایسی بارش نہ آئے کہ تباہ و برباد نہ کر دے، بڑی سکون والی بارش نازل فرما۔ میرے نبی فرمانے لگے اللہم غیثا مغیثا۔ ابو لبابہ قریب بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو لبابہ جانتے ہو کون ہے؟ ابو لبابہ وہ ہے جب بنو قریظہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بھی فیصلہ نہیں سنایا تھا، یہ ان کو ملنے کے لیے ان کے علاقے کے تھے، خاندان کے تھے، انہوں نے پوچھا ابو لبابہ تجھے پتہ ہے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ زبان سے جواب نہ دیا، اشارہ کیا، یوں کیا، پھر کہنے لگے یار میں نے تو غلطی کر لی، میں نے تو راز کھول دیا،
मुझे तो ये बताना नहीं चाहिए था। फिर रोते हुए मस्जिद नबवी के अंदर चले जाते हैं, अपने आप को जाके रियाजुल जन्ना के अंदर एक सतून के साथ बांध लिया, अल्लाह से माफियां मांगते हैं। रब ने माफी का ऐलान कर दिया। अब अबू लुबाबा ने अपने आप को बांधा हुआ खोलता नहीं, कहता नहीं खोलूंगा जब तक के महबूबे कायनात मुझे आकर के ना खोलेंगे। मेरे नबी ने अपने हाथ से खोला और अल्लाह सबको गुजर चौक वालों एक दफा वहां ले जाए। आज भी रियाजुल जन्ना में जा करके देख लेना, रियाजुल जन्ना के अंदर एक सतून है जिसका नाम है उस्तवाना तो अबी लुबाबा। उस्तवाना तो अबी लुबाबा के नाम से एक सतून मंसूब है। ये वो अबू लुबाबा है। मेरे नबी कहते अल्लाहुम्मा गैसम मुगीसा, वो कहता है महबूब जी बारिश की दुआ ना करें। अत्तमरो फिल मराबिद, खजूरें तो अभी उधर ही पड़ी हैं, बारिश आएगी खजूरें बर्बाद हो जाएंगी। जिस तरह के गंदम कटाई करके हैं जी उते पिड़ाती छड़ दी दिए हैं जी, सिंधी जी कहते हैं देरन ते पई दिया। हाँ जी, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मैनू तो पंजाबी का भी पता लग गया तो सिंधी का भी। बहरहाल जहाँ कटाई खजूरें उतार के रखी जाती हैं उन्होंने देरे या पेड़ ये पोड़ कहते होंगे, क्यों जी उसी जगह पे अभी पड़ी हुई हैं। अल्लाह के नबी बारिश की दुआ ना करे कि उर्दू दान है तो आज मुझे बता के जाए कि आपके पास इसका क्या लफ्ज है। मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह पड़ीदन शहर में तकरीर करने के लिए आए, तो तकरीर कर रहे थे तो कहने लगे दूध डुल गया। कहने लगे इसकी उर्दू बताओ मुझे। दूध गिर गया अलग चीज है, दूध डुल गया है जी। तो इसी तरह ये पेड़ ते देरे दी जड़ी है ना उर्दू मैनू दसे हो जाए, क्यों जी, ताकि मेरे इल्म में भी आ जाए। ये वसी मैदान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा गैसम मुगीसा। अबू लुबाबा कहता है कायनात के इमाम अत्तमरो फिल मराबिद, मेरे नबी ने फिर दुआ की। ये बोलते हैं अत्तमरो फिल मराबिद, मेरे नबी जब 3 मरतबा ये फरमा चुके अल्लाहुम्मा गैसम मुगीसा, ये कहने लगा अत्तमरो फिल मराबिद, तो मेरे नबी देख के हंसने लगे। फरमाया अबू लुबाबा अब हम देखेंगे अल्लाह की रहमत आएगी तो अपने कपड़े उतार के भी जाएगा, बारिश आएगी तो अपने कपड़े उतारेगा, फिर जा करके बारिश में पानी को बंद करेगा। साहबा फरमाते हमने देखा एक बदली आती है, बारिश नाज़िल होना शुरू हो जाती है, बारिश बरस रही है। अबू लुबाबा फिर खड़ा होता है, जा करके यसुद्दु साला बल मराबिदी, फिर जाता है कपड़े उतार करके जाके पानी को रोकने लगा। यहां से पता चला कि बंदो जब रब हंस देता है तो सारी चीजें अता कर देता है। कोई बंदा मायूस ना हो कि मेरी सुनी नहीं गई है, कोई बंदा ये ना कहे कि मैं मांगता रहा मुझे दिया नहीं गया है। रब देने पे कादिर है, लेकिन आप जरा मांगने वाले तो बन जाएं। और अल्लाह के बंदो जब इंसान उस कैफियत में अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करता है तो अल्लाह ताला उसके काम बना देता है। फिर मैं ये भी साथ में बयान करता चला जाऊं, कौन सा अमल है जिसको आप करें तो रब आपको देख करके हंस दे। जानना चाहते हो? ये रमजान का महीना है, रमजान का प्यारा महीना है, इसमें हमें जानना चाहिए कौन से अमल है। पहला अमल है आपके पास तौहीद और शिरक, तौहीद और शिरक से पाक हो। और मेरा तौहीद का तरीका ये है, तौहीद वाले के गले में तावीज होता, बोलो बोलो डरो नहीं, ना गले में होता है, ना बाजू में होता है, ना
یہ नाफ नहीं जाती, बाबे जी के तावीज से चली जाती है। शिरक से बच जाओ अल्लाह के बंदो, ये शिरक है। तौहीद उसके पास हो, गौर करना जरा। शिरक से बचा हुआ हो, फिर नमाजें पढ़ने वाला बंदा हो, गौर करना जरा। मुजाहिद आदमी, मेरे नबी ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है, जब शहीद होता है, अल्लाह इसकी तरफ देख करके हंसता है। बदर के मैदान के अंदर आओ, बिन अफरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, महबूब जी मुझे ये बताना कौन सा अमल है जिसको देख करके रब हंस देता है। मेरे नबी ने फरमाया, खराजा बिनफ्सिही व माली, अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ, बगैर किसी चीज को पहने जब जो जाता है, कहता है अल्लाह के रसूल ये बात है, अपनी ज़रा भी उधर फेंक दी, आगे बढ़े जा करके शहीद हो जाते हैं। और गौर करना, यहाँ वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में निकला था, मुजाहिद बन के जब वापस आता तो रब इसको देख करके भी हंसता है। और वो बंदा जो खुफिया सदका और खैरात करता है, मेरे नबी की हदीस है कि कोई आकर के ऐलान करता है और वो सवाल करता है, वल्लम यसल अनिल कराबात, रिश्तेदारी का वास्ता दे करके नहीं मांगता, रिश्तेदारों को बीच में नहीं डालता, या ये नहीं कहता मैं फला कबीले का बंदा हूँ। साइला करके सवाल करता है, उस वक्त जो उसको देने वाले होते हैं, गौर करना, हमारे यहाँ तो तरीका बदल गया, साइल सवाल करे हमें गुस्सा आ जाता है, मौलवियों की टीम ने हमें तंग कर दिया, एक जाता है दूसरा आ जाता है। अल्लाह के बंदे शुक्रिया अदा किया कर, अल्लाह ने आपको दिया, कहीं रब सारा एक लम्हे में खत्म ना कर दे। मेरे नबी ने फरमाया, जब उसने सवाल किया सारे बंदे चले गए, एक बंदा बैठा हुआ था, जो बैठा था देख रहा था मामला क्या बनता है, सब चले गए, बाद में आकर के उसने उसको दे दिया। फरमाया जब वो अकेला पीछे उसी बंदे के पीछे लग करके जाके देता है, मेरा रब उसको देख करके भी हंस देता है। और ये जो खुफिया अमाल होते हैं, इनके बारे में एक हदीस और सुना दूं मैं, अल्लाह कितना मुकाम बंदों का बना देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बंदा मेरे नबी के पास आया करके क्या कहता है, महबूब जी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए। अल्लाह के रसूल मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए। आपने फरमाया बैठो। आपने ना अपने घर में पैगाम दिया, भाई खाने के लिए भेजो, मेहमान आया हुआ है। घर से पैगाम क्या आया, ला आजिदु इल्लल मा, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे नबी ने दूसरे घर में पैगाम दिया, जवाब आया पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरी ताकीक है, इस मदरसे में ऐलान करता हूँ, गलती हो बाद में पैगाम दे देना। मेरे नबी की 9 बीवियां उस दिन 9 घर थे जब आपने पैगाम दिया। आखिरी घर से पैगाम क्या आया, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कौन है, जहानों का सरदार है जिसके घर में कुछ नहीं है। मेहमान की मेहमान नवाजगी फिर भी करना चाहते हैं। जाके अपने अपने फ्रिज चेक करना, जाके ईद का भी माशाल्लाह गोश्त पड़ा होगा, अगली ईद आने वाली है, फिर भी अगर कोई बंदा नजर आ जाए ना खाने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं आसन सेल्फी खिलाए, हम पे ना आए। ये हमारी कैफियत होती है, नाराज नहीं होना, ये मोहब्बत और प्यार की दावत है। मेरे नबी ने जब ये देखा आखिरी घर से ये पैगाम, मेरे नबी ने फरमाया मैं ये फुहादा, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत को लेकर के चल रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया इसकी मेहमान नवाजगी कौन करेगा, मेरे मेहमान को कौन खिलाएगा। फकाम रजुल मिनल अंसार, एक अंसारी नौजवान
ईमान उड़ता, कहता अल्लाह के रसूल आपके मेहमान को मैं जा करके खाना खिलाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। ये कहता मैं अपने घर जाता हूँ तैयारी के लिए, गया अपनी बीवी से जा करके कहा अल्लाह के रसूल का मेहमान है, क्या घर में कोई चीज है कि नहीं? उसने क्या जवाब दिया? खाना है लेकिन बच्चों का खाना है, को तो सिबियानी मेरे बच्चों का खाना है। फरमाया तुम खाना बनाओ, बच्चों को दिलासे देती रह जाना, बच्चों को यही इंतजार करा देना, बच्चे सो जाएंगे हम आएंगे, मेहमान आएगा फात फी सिराजा, रोशनी बंद कर देना। जब ये बंद हो जाएगी रोशनी, बच्चों का खाना उसको पूरा आ जाएगा, मैं साथ बैठूंगा मुंह हिलाता रहूंगा, खाऊंगा नहीं। गौर करना आप भी बच्चों वाले हो, बच्चों वालों जरा जिक्र अपने घर में जाके कर देना। अम्मा जी खाना बना रही है, बच्चे कहते हैं अम्मी खाना दे दीजिए, बेटा आज भी तैयार नहीं हुआ सब्र कर ले, अम्मी जी खाना दे दीजिए। आपका बच्चा दुकान में चला जाए, क्या कहता है अब्बू आइसक्रीम नहीं फला आइटम चाहिए, आपने वो भी लेकर के दिया होता है, छोटा गुस्से से बाहर आ जाता है मुझे तो फला चीज चाहिए थी। हम कहते हैं पप्पू लड्डू नाराज ना हो, तेरा अब्बा वो भी तुझे लेकर के दे देता है। यहाँ वही खाना है जिसको तैयार किया जा रहा है। अम्मी कहती है बेटा अभी तैयार नहीं हुआ, दरा दर्द दिल समझने वाले इस बात को समझिए कि नबी की बात को साहबा कितनी तरजीह देते थे। आकर खाना तो तैयार हुआ, बच्चे सो गए, ये साहब भी आया खाना खा लिया। सुबह जब अल्लाह के नबी के पास गए, मेरे नबी ने देखते क्या फरमा दिया, ज़ाइकल्लाहुल लैला ज़ाइकल्लाहुल लैला ला सनीएकुमा, मेरा रब आज की रात तुम्हें देख करके हंस रहा था जो तुमने अमल किया था। बताइए उस वक्त कोई ये सेल्फी साफ जैसा ये मोबाइल था, फेसबुक था, ट्विटर था, मैसेंजर था, क्या था? अल्लाह की रजा थी, रब की मोहब्बत थी। क़यामत तक के लिए मिंबर और मेहराब पे ये होता रहेगा। जब बंदा इस तरह के अमल करता है तो रब देख करके हंसता है। और इसके बारे में एक रवायत, इस बंदे का नाम है अबुल मुतवक्किल साबित बिन कैस अल अंसारी। दूसरों ने कहा अबू हुरैरा। इमाम मुस्लिम ने सराहत की कि अबू तलहा अंसारी थे। ये कौन है? अबू तलहा अंसारी, जिन बंदों को रब देख के हंसा। और एक बात और सुन लीजिए, जिसको देख के रब सबसे पहले हंसा वो कौन सा बंदा है? मैं अल्लाह के फजल से आपके सामने रखता हूं, वो कौन सा बंदा है? वो बंदा साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब साद की मौत वाक़या होती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे से वापस आए। जब आए मदीने शहर के अंदर मामला देख लेना। वो अम्मी एक मौका ये था, साद पे कलमा पढ़ने पे राजी नहीं थी, लेकिन जब अम्मी भी मुसलमान हो गई, साद को शहादत का मुकाम मिल गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा, साद, साद की अम्मी रो रही थी, ऊंची ऊंची रो रही थी। मेरे नबी ने फरमाया क्या बात है, ला यरका दमो के वला यदबोजनो के, क्या बात है तेरा गम खत्म क्यों नहीं हो रहा? तुझे पता नहीं ए तज़ाली मौत इब्ने के अर्श रहमान, तेरे बेटे की मौत पे रब का अर्श भी कांप गया। लेकिन अव्वल मन दाहिकल्लाहु अलैहि अला इब्ने का, सबसे पहले जिसको देख के रब हंसा वो तेरा बेटा ही साद है। सबसे पहले जिसको देख के हंसा वो तेरा ही बेटा है। मेरे भाइयों, वो अमाल कीजिए जिनको देख के रब राजी हो जाए, और रब आपको और मुझे देख करके मुस्कुरा दे। और मुझे आज वो चेहरे नजर नहीं आ रहे जो पहले रमजान शरीफ में नजर आया करते थे। पता नहीं अल्लाह ने कोरोना में तो नहीं कहीं आगे पीछे कर दिए।
کہ اللہ اگر گئے ہیں تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم تو دوستوں اور بھائیوں کے دیدار کے لیے آتے ہیں، اور جب میں یہاں آتا ہوں مجھے امین صاحب بڑے یاد آ جاتے ہیں. حضرت سلفی صاحب بھی کہہ رہے تھے یار امین صاحب جب آپ آتے تھے تو ایک فرمائش کرتے تھے. میں نے کہا جب آپ کو تو کہنے کی ضرورت نہیں، جب امین صاحب کا نام آ گیا تو اس کا مطلب ہے فرمائش مجھے سمجھ آ گئی.